Okay, so the first difference of normal function definition and error function definition is arguments is not accessible, not accessible or not available inside arrow functions. Just like other function, there is an argument array. By default, an argument array is there. Whenever you pass any parameter at the time of function calling, whether you are passing any formal parameter or not, still you can get all the parameter without loss via arguments array, which is the default array available inside the function in JavaScript. But whenever you are defining a function using arrow function, then this arguments array will not be available, right? This is the main difference. This is main difference, one of the main difference between normal function definition and arrow function, right? Then another function is IIAF. What does it mean? Immediately invoked function expression. What does it mean? It means आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो, देन आप उसको कॉल करना पड़ता है, whether it is an anonymous function which you store it in an variable, or might be a named function, right? Or a named function, you can call it using the function name, right? But आपको कॉल करना पड़ता ही है. उसको कॉल करने के लिए we have to just call something like function name, ठीक है? Function name parenthesis then semicolon. This is a function calling. Clear? So the function name and parameter हम पास करते हैं यहाँ पर. Clear? Sorry, like this. तो ये function calling, this is called function calling. But immediately invoked function expression means this is also an anonymous function. Remember, this is also an anonymous function, but there is no name, but it is immediately invoked. What does it mean? Whenever your JavaScript will render or execute, it will automatically called. This function will automatically called. इसका syntax क्या है? Now एक parenthesis and दूसरा parenthesis, though both are next to each other. Then inside first parenthesis, you can define your function, just like function. Then function name you can define or not as anonymous function. So it doesn't matter whether you are giving any name to that function or not. Then ये function name देके कोई फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ये immediately call होगा, right? Then function, then parameter, whatever you are going to pass, then this is function body. For example, I don't have any parameter, then this is function body. Then you can write something inside the function body. तो ये function जो anonymous function will start from the function keyword and ends the right curly braces, right? ये function body, ये first parenthesis के अंदर लिखा मैंने, इसके अंदर जो भी लिखूंगा मैं function body के अंदर, it will execute accordingly, right? But second parameter जो second यहाँ पे दिख रहा है आपको two parenthesis, this is used for calling this method, right? तो ये सिंटेक्स है IIF का, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन. बहुत सारे प्लेस में आपको ये मिलेगा जो ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है. ये फंक्शन लिखा तो है, बट ये कॉल कैसे होगा? इमीडिएटली कॉल हो जाएगा एज सून एज इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, राइट? तो यहाँ पे सपोज इसको पैरामीटराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे A, B, C, these are parameters, means formal parameters, and if you want to pass the actual parameter over here, because actual parameter हम कब पास करते हैं? Whenever we are calling that function, but this function is immediately or automatically called, right? तो इसको नाम तो है ही नहीं, हम कैसे कॉल करेंगे? So we can pass our parameter over here, 1 2 2 5 6, whatever you want to pass, you can pass over here. अभी इसमें चेक करते, इसमें आपको आर्गुमेंट्स मिलता कि नहीं मिलता, ये भी हम चेक कर सकते हैं. इसमें मिलेगा आर्गुमेंट्स, राइट? Look, argument is available inside it.
बट आर्गुमेंट में मुझे गलत है, ये गलत जगह में आर्गुमेंट पास किया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी हियर, राइट। सो यहाँ पे मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन किया, एनोनिमस फंक्शन। सो पास किया यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर, and you can get it over here, right? But here if you want to put the arguments, you want to access the argument inside arrow function, does it work or not? It will throw an error. Line number 8, line number 8, because arrow function is an anonymous function, but we can also call it automatically. But the default argument जैसे मैंने बताया था arrow function में accessible नहीं है, but यहाँ पे accessible है। तो immediately invoke function expression समझ में आ गया? Is it clear? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक डाउट है सीखे, हाँ, इसमें जैसे कि ये जो आपने कहा कि ये जो फंक्शन है इंस्टेंटली मतलब कॉल हो कॉल हो जाता है। जाता है। हाँ, बट इसमें ये है कि जैसे हम कोई भी इसके अलावा और भी जो स्क्रिप्टिंग्स हमारे होंगे, हमने आगे लिख के रखेंगे वेरिएबल या कोई भी डिक्लेरेशन, कुछ भी ऊपर भी रखे होंगे, तो इज इट गोइंग टू सीक्वेंस में ये आएगा, ये पहले ही जैसे ही रन एग्जीक्यूट करेंगे ये पहले कॉल ये हो जाएगा? नहीं नहीं, ये सीक्वेंस में ही आएगा। ऊपर से आएगा कि जब हाँ इधर पहुंचेगा तो ये कॉल होगा? हाँ, क्योंकि इसका फंक्शन डेफिनेशन पहले जैसे हम डिफाइन करते थे, और इधर ये वेरिएबल में स्टोर करें, नहीं तो फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन डिफाइन करते थे, राइट। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जब ये जब मिलेगा तभी जाके एग्जीक्यूशन होगा, मतलब इसका डेफिनेशन मिलेगा और इमीडिएटली कॉल हो जाएगा ये। मतलब वो टॉप बॉटम अप्रोच में आएगा जहां पे हाँ, जितने भी उसके ऊपर हमारे जितने भी कॉल्स होंगे या जो भी कंसोल लोग वो होंगे सब पहले एक्टिवेट एग्जीक्यूट। होके देन हाँ, इट विल एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। ओके ओके। ओके। Now REST operator is most important operator and most used operator. REST operator and spread operator. I will explain it in details. Let me copy this example first. So what is REST operator? ये 6 में अभी क्या जो प्रोग्रामिंग, अभी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं, इसमें ये वाला बहुत यूज होता है। बहुत सारे प्लेस में आपको देखने को मिलेगा 3 डॉट विथ ए वेरिएबल नेम, राइट। सो इट इज कॉल्ड REST operator. There is another operator called spread operator, but the syntax is exactly same, but the functionality is different. It works differently. So कहाँ पे यूज होता है मैं ऑब्जेक्ट एंड एरे में डिटेल्स में बताऊंगा, तब एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं व्हाट इज रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट, REST, रेस्ट ऑपरेटर। सो रेस्ट ऑपरेटर क्या है? जैसे मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, लेट मी एक्सप्लेन इट। सो आई एम जस्ट डिफाइनिंग एज ए सम ऑफ function which is an anonymous function, because I am defining this function using arrow function, and I'm calling it over here using the variable name. It is pretty clear. Now यहाँ पे क्या किया मैंने, I just passed 6 arguments over here. Look at it, and here also 8 arguments. But you can see at the time of function definition, I am defining only first 2 parameters, then a rest parameters. REST operator, REST parameter, you can say. So what does it mean? So whenever you pass actual argument at the time of function calling, right? So from the left to right, जो भी आपने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किया होगा, it will catch sequentially. Means 1 will be stored in A, 5 will be stored in B, but rest of the argument will store in this number parameters, right? So what does it mean? This number will be an array of all argument. Clear? So ये 1 and 5 को छोड़ के जितना भी पैरामीटर होगा ये नंबर्स में स्टोर हो जाएंगे। क्लियर? मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ rather than summation, I am just printing here console.log all the element inside the numbers operator, number parameter, right? It is called REST operator और रेस्ट पैरामीटर्स, मतलब रेस्ट ऑफ द पैरामीटर जो भी आर्गुमेंट होगा ये इट विल बी कैच बाय दिस नंबर, राइट। तो ए बी में क्या रहेगा 1 and 5 फॉर द फर्स्ट वन। फॉर नाउ आई कैन कमेंट द सेकंड वन,
and let's see what is the value of numbers. What are the elements inside the numbers array, because by default it will be an array. Did you see 10 minus 3 6 and 10? So 10 minus 3 6 and 10. So this rest of the last parameters will store over here. If you want to pass any other more parameters over here, you can also pass, right? And it will be catched by the rest parameter. Is it clear? But first two parameter 1 and 5 is not here. Look at it. So जैसे हम रेस्ट पैरामीटर क्या काम करता है, जैसे हम इनिशियली जो भी एक दो पैरामीटर पास करेंगे, इट विल कैच द सीक्वेंशियली एक और दो पैरामीटर, वन सेकंड फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स वी पास फ्रॉम हियर एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, बट रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट विल बी कैच्ड बाय दिस रेस्ट पैरामीटर. ओके, क्लियर? अब रेस्ट पैरामीटर का दो लिमिटेशन है, लिमिटेशन तो नहीं बोल सकते, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है. जैसे आप ऐसे सोच सकते हो कि सपोज मैं ये रेस्ट पैरामीटर यहाँ यूज किया, इसके बाद दो पैरामीटर ऐसे पास कर सकता हूँ क्या, आर एंड टी फॉर एग्जांपल, आर एंड वाई. इज इट पॉसिबल? नो, इट विल थ्रो एन एरर. आप ऐसे आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हो. रेस्ट पैरामीटर इज ऑलवेज द लास्ट पैरामीटर इन द फंक्शन डेफिनेशन. इसके बाद कोई भी आप आर्गुमेंट या पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते हो. फंक्शन डिफाइन करने के टाइम you cannot define any other parameter after rest parameters. उससे पहले तुम डिफाइन कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे और भी कुछ पास करना चाहता हूँ, C, D, E, राइट. तो ये फर्स्ट 5 पैरामीटर्स, 5 आर्गुमेंट्स 1, 5, 10, -3 and 6 will be stored respectively A, B, C, D, E, right? But rest 4 parameters, 4 arguments will store in numbers. Let's see 10, 34, 5 and 7. 10, 34, 5 and 7 are stored in numbers, but initially 5 arguments are stored respectively in A, B, C, D, E. Is it clear? Yes, sir. So Yes, rest parameter क्या करता है, rest of the argument को वो एक ही साथ ले लेगा. For example, I am not using any single parameter over here, खाली rest parameter. Does it work? Yes, absolutely it will work. So it will take every parameter, whatever you are passing from here, it will be stored in rest parameter, and you can, and as an array you can manipulate it inside this function. Clear? खाली एक इतना ही रेस्ट्रिक्शन है, इसके बाद तुम पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते हो. ये नॉर्मल फंक्शन ही है. फंक्शन में जैसे आप अपने फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन के टाइम डिफाइन करते हो, यू कैन डिफाइन इट. एंड फॉर एग्जांपल इसमें रेस्ट ऑफ द जितना पैरामीटर आएगा, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर डाल दोगे. ऐसे 25 पैरामीटर तो कॉमा कॉमा करके आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. ये रेस्ट पैरामीटर एक ही करोगे तो ये जितने भी पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हो एज एन एरे स्टोर हो जाएगा आके ये पैरामीटर्स के अंदर. क्लियर? And it is available in ES6 only. Older version of JavaScript does not support it. Now callback functions. What is callback functions? कॉलबैक फंक्शन किसको बोलते हैं? जितने फंक्शन की जब डिटेल्स है हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसलिए कॉलबैक फंक्शन, क्लोजर, राइट, वो सब आएगा आगे. फिर और कुछ मेथड्स भी है जो ये फंक्शन के चैप्टर में आएगा, मैं बताऊंगा. और अभी कॉलबैक फंक्शन क्या है? व्हाट इज कॉलबैक फंक्शन? कॉलबैक फंक्शन मीन्स if means when you are passing an function as a parameter to another functions. So जो पैरामीटर के हिसाब से पास कर रहे हो और एक फंक्शन के अंदर, तो उसको बोलते हैं कॉल बैक. तो कौन इसमें कॉल बैक होगा? जैसे ये एक फंक्शन डिफाइन किया, शो रिजल्ट, यहाँ पे सम अप करके भी एक फंक्शन डिफाइन किया. देयर आर 2 फंक्शंस. बट यहाँ पे देखो जब फंक्शन कॉल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट, मैं काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग वैल्यू आई एम कंसोलिंग ओवर हियर console.log. तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा.
राइट, बट यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मुझे इसके अंदर मिलेगा ही नहीं। क्लियर? तो अभी मैं क्या किया यहाँ पे देखो, ये कंसोल की अब जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या किया, यहाँ पे सम अप फंक्शन कॉल किया, बट इसके अंदर देखो शो रिजल्ट फंक्शन भी मैं यहाँ पे पास किया एज ए पैरामीटर टू सम अप फंक्शन। तो शो रिजल्ट इज ए कॉलबैक टू सम अप फंक्शन, राइट? सो कॉलबैक किसको बोलते हैं? अगेन द डेफिनेशन इज व्हेनेवर यू आर यूजिंग a function as an parameter to another functions, then this function जिसको आप पैरामीटर जैसा यूज कर रहे हो will be the callback to the main function. So यहाँ पे callback कौन है? show result is the callback, main function is the sum up. तो ये फंक्शन यहाँ पे मैं पास करूंगा, तो sequentially the result handler first parameter over here will catch this function definition, and rest of the parameter will be catched by this number rest parameter, right? Okay, now यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपको फंक्शन की रेफरेंस पास करना होगा। व्हाट डज इट मीन? मीन्स you can pass only the name of the function, you cannot pass something like this, because what does it mean? It means it will execute or call immediately. हमको यहाँ पे immediately call नहीं करना है, हमको क्या करना है? उसका रेफरेंस पास करके ले जाने का, मीन्स उसका डेफिनेशन पास करके ले जाने का, फिर अंदर जाके मैं ये जो रिक्वेस्ट हैंडलर को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर? कॉलबैक समझ में आया? कॉलबैक मीन्स एक फंक्शन तुम यहाँ पे डिफाइन किया और उसका रेफरेंस में पास करके यहाँ पे पास किया, जो अंदर सम ऑफ फंक्शन के अंदर मैं यूज करूंगा, राइट? तो अब इसका आउटपुट क्या देगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा मैं बताता हूँ। पहले इसका जो डेफिनेशन है मीन्स इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जाके ये शो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इसको मैं कॉल कर सकता हूँ सिंपली, जैसे पैरेंथिस बाद में पैरेंथिस देके फंक्शन कॉल करते हैं, ऐसे कॉल कर सकता हूँ, राइट? बट यहाँ पे मेन फोकस हम किस में करते हैं? जो कोई भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट, जैसे हम वैल्यू पास करते हैं एज आर्गुमेंट, ऐसे फंक्शन को भी फंक्शन एज रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। मतलब ये फंक्शन जो भी लिखा हुआ है इसको मैं इसके अंदर पास कर सकता हूँ डायरेक्ट। क्लियर? एंड इसको यहाँ पे पास करूंगा तो somebody will be there to catch it and we can execute it and you can yes execute it by calling that function. Clear? So callback किसको बोलते हैं हम? कोई बताओ? फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट अगर पैरामीटर अगर हम पास करेंगे तो 100% करेक्ट, दैट विल बी राइट? So इसमें कोई डाउट है गाइस? नहीं है? अभी ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है, बट हम डायरेक्ट भी ऐसे पास कर सकते हैं यहाँ पे एज ए फंक्शन। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन कैसे लिखते हैं? इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। काम कर रहा है ये सम अप? अभी मैं ये फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट पास किया तो भी ये 2 2 2 3 3 पास किया आपने। यहाँ पे एक बार प्रिंट कर रहा है, फिर इसके अंदर फिर ये एग्जीक्यूट होने के लिए ट्राई कर रहा है, बट ये नहीं मिल रहा है अभी, राइट? इसमें कोई पैरामीटर पास करके हम डिस्प्ले नहीं कर रहे। अब करना है तो भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम पास कर देंगे जे डी एंड यू कैन प्रिंट अवर डी। मीन्स व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे जो फंक्शन मैंने पास किया, ये वाला फंक्शन पास किया मैंने, तो इसको कैच कौन करेगा? सम अप के अंदर फर्स्ट पैरामीटर रेजर हैंडलर, और रेजर हैंडलर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, कॉल कर रहा हूँ, तो उसमें एज एक्चुअल पैरामीटर ये समेशन जाता है, राइट? समेशन किसका? जो नंबर्स में स्टोर हुआ होगा। क्या स्टोर हुआ होगा ना? 1 5 3 6 एंड 10, ये इसका समेशन। तो उसको मैं क्या किया, ये रिजल्ट हैंडलर कौन है? रिजल्ट हैंडलर ये फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ।
आपको मिल जाएगा, देखो 19 मिला। क्लियर? तो एनोनिमस फंक्शन डायरेक्ट भी ऐसे फंक्शन पास कर सकते हो, या ऐसे फंक्शन एज ए स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो, या एज ए फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन बना के फिर उसका नाम भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी clumsy, it is not clear code, right? So it is better to create a function, define a function clearly outside it, and you can just pass the name of the function as a parameter to the main function. That is called callback. Okay, ये क्या करता है, सपोज आपको कुछ चीजें करनी है, एक फंक्शन बना दिया और वो फंक्शन को आप बार बार एक फंक्शन के अंदर उसको बहुत सारे लिखना नहीं है, खाली उसका नाम पास करेंगे और उसको इसका पास कर एज ए आर्गुमेंट पास करके ले जाएंगे, फिर वो अंदर कॉल करवाएंगे, राइट? नाउ बाइंड मेथड, ये बाइंड मेथड का बहुत सारे यूसेज है, बट अभी मैं एक यूसेज बता रहा हूं आपको। तो पहले प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ये मैं समझा देता हूँ। सिंपल एक फंक्शन बना है सम ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर दो आर्गुमेंट है, दो पैरामीटर है, वन है रेस्ट पैरामीटर, वन इज रिजल्ट हैंडलर। एंड रिजल्ट हैंडलर में क्या कर रहा हूँ, कुछ पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब ये सम ऑफ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, राइट? अब मुझे ये भूल जाओ, अब इसकी बात बाद में देखते हैं, ठीक है? सेम ये सबस्ट्रक्ट भी ये नहीं चाहिए हमको, ये डिलीट कर देते, हम एक ही चेक करते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल मैंने बताया था आपको, बट इसमें दो चीज कर रहा हूं मैं, देखो सो रिजल्ट क्या कर रहा है, दो पैरामीटर आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? कि मुझे दो आर्गुमेंट कोई भेजो तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। सो देर इज वन फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकंड, दो पैरामीटर आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, राइट? तो जब फंक्शन ये जो दो पैरामीटर एक्सपेक्ट जो करता है, तो उसको जब फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसको दो पैरामीटर देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये दो पैरामीटर जो एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो फंक्शन के अंदर प्रिंट करने के लिए वो वेरिएबल यूज हो रहा है। इफ हम यहाँ पे कुछ पास नहीं करेंगे अंदर ना, अनडिफाइंड अनडिफाइंड दिखाएगा, जैसे अभी दिखाएगा, देखो मैं बता करता हूँ, क्या दिखाया, अनडिफाइंड, यहाँ दिख रहा है द रिजल्ट आफ्टर 19 ऑल नंबर इज अनडिफाइंड। ये मैसेज में 19 मिला, क्यों? क्योंकि ये 19 कहाँ पे आया, ये फर्स्ट पैरामीटर कहाँ पे आया, ये सम जो पास किया मैंने यहाँ पर। देखो ये समझ में नहीं आता तो मुझे क्लियरली पूछना है, क्योंकि ये धीरे धीरे डिफिकल्टीज लेवल बढ़ते जाएगा और मैं स्पीड भी जाऊंगा, क्योंकि फंडामेंटल जितना प्रैक्टिस करोगे आगे जाके इतने समझ में आएगा। ये जो पैरामीटर वो कैसे कहाँ पे पास हो रहा है समझ में नहीं आता तो मुझे फिर से बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट? तो यहाँ पे क्या क्या सो रिजल्ट फंक्शन है जो आप डिफाइन किए, जो दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, और यहाँ पे सो रिजल्ट मैंने एज एन कॉलबैक पास किया, और इसको कैच कौन कर रहा है ना, रिजल्ट हैंडलर, राइट? तो रिजल्ट हैंडलर कैच करेगा, तो रिजल्ट हैंडलर को हम कैसे यूज करेंगे एज ए फंक्शन, तो फंक्शन को कॉल मैं कैसे करूंगा, ये रिजल्ट हैंडलर, फिर उसके बाजू में दो पैरेंथेसिस के अंदर में कोई भी पैरामीटर पास कर सकता हूँ, बट दिस फंक्शन नाउ एक्सपेक्टिंग टू आर्गुमेंट। अभी इसमें एक ही आर्गुमेंट पास किया, दूसरा आर्गुमेंट तो कुछ मिला ही नहीं रिजल्ट करके, यस और नो? तो वो अनडिफाइंड दिखा रहा, देखो ऑल नंबर इज अनडिफाइंड, क्योंकि कुछ है नहीं तो अनडिफाइंड ही दिखाएगा। क्लियर? तो ये सेकंड पैरामीटर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो फंक्शन एज ए कॉलबैक पास कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैसे आर्गुमेंट पास करेंगे कि सपोज रिजल्ट में कुछ भी लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे पास करना होगा 5, ऑल नंबर इज, और कुछ भी, या यहाँ पे सपोज करता हूँ तो कर देता हूँ द रिजल्ट आफ्टर, यहाँ पे सपोज पास कर रहा हूँ कुछ भी, ये इसके जगह में कुछ भी प्रिंट करते, चलो ना अभी के लिए 2222 प्रिंट कर रहा हूँ मैं, पास किया, तो ये क्या करेगा, एरर दिखाएगा। देखो क्यों? क्योंकि जब फंक्शन को तुम एज ए
कॉल बैक पास करोगे, क्योंकि ये 100 रिजल्ट फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल बैक पास करते हो, तो यहाँ पे पेरेंथिस नहीं डाल सकते। मीन्स व्हाट डज इट मीन, फंक्शन कॉलिंग हो जाता है, बट वी कैन नॉट पास दिस फंक्शन एज ए कॉलिंग, एज एन रेफरेंस पास करना है। सो हाउ कैन आई पास द रेफरेंस, ओनली द नेम, दिस parenthesis we cannot pass over here directly. Is it clear? अभी तो कोई डाउट है? क्लियर। क्लियर। तो फिर हम पैरामीटर कैसे पास करेंगे? फॉर एग्जांपल ऐसा कोई पैरामीटराइज फंक्शन है जो जिसको मैंने कॉल बैक के हिसाब से यूज करना है, तो मैं कैसे पास करूंगा? तो इज देयर इन वे? यस। इसके लिए कौन सा वे है जो मैंने अभी कर रहा था? क्या कर रहा था? बाइंड मेथड। देयर इज ए बाइंड मेथड। इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। बाइंड मेथड स्पेशली करता क्या है, जब कोई फंक्शन को, ये एक बाइंड मेथड का यूसेज है, जब मेथड को हम एज ए कॉल बैक पास करते हैं एंड वी वांट टू पास सम एक्चुअल आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट टू दैट मेथड इनसाइड द कॉल बैक। ये कॉल बैक के अंदर मैंने ये एडिंग करके फंक्शन पैरामीटर पास किया, बट वो बाइंड मेथड को यूज करके मैंने पास किया। देखो, इंस्टेड ऑफ मैं डायरेक्टली ऐसे पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरर। अब ऐसे करूंगा तो देखो आपके, सॉरी, आपको एरर मिल रहा है कि रेजल हैंडलर इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज मैं फंक्शन के रेफरेंस ही पास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉल ही कर देता हूँ। तो उसको करने के लिए क्या है, बाइंड मेथड यूज करते हैं। कैसे? डॉट बाइंड। और ये बाइंड मेथड का पहला पैरामीटर होता है क्या? दिस। और दिस क्या है मैं आपको बताऊंगा। दिस ऑलवेज रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये मैं बताऊंगा दिस क्या है। ऑब्जेक्ट जब पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, ये खाली इतना ही ध्यान रखो, ये करंट ऑब्जेक्ट या करंट फंक्शन को रेफर करता है। बट यहाँ पे दिस, ये हमेशा बाइंड जब यूज होता है तो एक ऑब्जेक्ट जो करंट ऑब्जेक्ट पास करते, एंड देन इसके अंदर पैरामीटर। एंड बाइंड इज ऑलवेज यूज्ड, कब यूज करते हैं? जब वो फंक्शन को इनडायरेक्टली कॉल करना होता है, डायरेक्टली कॉल नहीं करना है। अब ये क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे पैरेंथिस ऐसे डालूंगा, इस तरीके से यहाँ पे पैरेंथिस डालूंगा तो वो डायरेक्टली कॉल हो जाता था, राइट? बट बाइंड ऐसा एक फंक्शन है जो क्या करता है, इनडायरेक्टली कॉल होने में मदद करता है। मैं आर्गुमेंट भी पास कर दिया यहाँ पर, एंड इसको कॉल इनडायरेक्टली, ये वन टाइप ऑफ वेरिएबल लाइक रिजल्ट हैंडलर इसमें स्टोर होता है, फिर बाद में मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पर। अल्टीमेटली यही हुआ ना। अभी ये फंक्शन को यहाँ पे पास किया और along with arguments, but I can store it over here and I can call it over here. इनडायरेक्टली कॉल करने के लिए बाइंड मेथड मदद करता है, राइट? तो जब कोई फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करना है और एज ए कॉलबैक फंक्शन में पास करूंगा व्हिच एक्सपेक्ट पैरामीटर और आर्गुमेंट, then we can pass the argument in this way. Bind mean dot bind method, this function name dot bind, फिर bind will expect the first parameter as this. What does it mean? The current object. So in case of this, we can also use the object name whenever we will learn object in details. At that time I will explain what is this and the parameter we want to pass over here, right? तो मैं यहाँ पे जो पैरामीटर पास करता हूँ, आपको कैसे पता चले कि ये पैरामीटर, ये फर्स्ट आर्गुमेंट पैरामीटर कैच करेगा, ये जो आर्गुमेंट है ये फर्स्ट पैरामीटर कैच करेगा और सेकंड पैरामीटर कैच करेगा? आपको कैसे पता चलेगा? So because of this support current object. यस। सो ये पेरेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट अभी नहीं समझ में आएगा, बट इतना ध्यान रखना, जो यहाँ से जो भी चीज पास करूंगा इट विल बी कैच बाय ऑलवेज सेकंड पैरामीटर। ये अंदर जो कॉल होगा ना, ये पहले कॉल होगा। ये कॉल जब होगा इसके बाद जाके ये एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। रिमेम्बर, जब ये यहाँ पे पास करूंगा तो ये एज ए रेफरेंस पास होगा, मींस उसका डेफिनेशन पास होके जाएगा। डेफिनेशन मतलब मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ रिजल्ट हैंडलर में क्या स्टोर होता है, राइट? कंसोल में प्रिंट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या होता है, उसका डेफिनेशन स्टोर होता है।
देखो ये क्या पास हुआ, जो फंक्शन पास किया उसका पूरा कोड आ गया। और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा कैसे ना, इसके बाजू में क्या करूंगा, ऐसे कर्ली ब्रेसेस ऐसे पैरेंथेसिस दे दूंगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। बट अभी बात ये है सर कि हाँ सर एक अभी जो डाउट था। सर रिजल्ट हैंडलर जो है वो एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जैसे उसको अभी अभी मुझे पेरेंट। एक चीज बताओ, ये मैं चीज जो यहाँ पे स्टोर किया, ये कहाँ पे स्टोर किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया। राइट। हाँ सर। तो वेरिएबल को इसको कॉल कैसे करूंगा, मैं इसके नाम में ही कॉल करूंगा। राइट। हाँ सर। अभी मैं जो आर्गुमेंट या पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर पास करता हूँ, वो जाके जब यहाँ पे स्टोर होता है तो ये सब होता क्या है, ये सब वेरिएबल ही होता है ना। हाँ सर। तो ये वेरिएबल में स्टोर होता है, जैसे इसमें स्टोर किया मैंने इसको, सेम इसी को मैं यहाँ पे पास किया, इसमें स्टोर किया अगेन, मीन्स ओके। मैं ये इंटरनली क्या होता है, ऐसे और एक लेट ऐसे एक वेरिएबल बनता है और इसके अंदर फिर ये स्टोर हो जाता है, सेम यही चीज यहाँ से लेके यहाँ तक, समझे। सर तो एज इस एन ऑब्जेक्ट फिर स्टोर हो रहा होगा रिजल्ट ऑब्जेक्ट हैंडलर। नहीं, ऑब्जेक्ट भूल जाओ, अभी कोई ऑब्जेक्ट भविष्य सोचने की जरूरत नहीं, एज एन फंक्शन। ये जो भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ ना मैंने, ये हाँ सेम ये रेजल हैंडलर के अंदर भी ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है जाके, सिंपल इतना ही समझो। अब इसको कॉल करना तो कैसे कॉल करूं, तो रेजल हैंडलर और पेरेंथिस, सर। ओके सर, एज अ फंक्शन वो काम एज कर ए रहा है। फंक्शन ही, मतलब फंक्शन की रेफरेंस मतलब क्या है कि फंक्शन की डेफिनेशन जो डिफाइन किया हुआ है, जो डिफाइन करने में जो कोड है वो जाके इसमें स्टोर हो जाता है, राइट। यस सर। गुड क्वेश्चन, ठीक है। बट अभी हमको क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि यहाँ पे दो पैरामीटर ये एक्सपेक्ट करता है। एक पैरामीटर आप बोलते हो कि मैं एडिंग पास किया यहाँ पे, दूसरे पैरामीटर में यहाँ पे सम पास किया, बट ये जो फंक्शन कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे तो एक ही पैरामीटर पास किया और यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया। तो बट यहाँ पे दो पैरामीटर आर्गुमेंट, दो पैरामीटर है, बट मैं जब कॉल करता हूँ तो यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है, यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है। तो ये कौन सा किस में स्टोर होगा, यहाँ पे दो है तो ये वाला मैसेज में जाएगा या ये वाला मैसेज में जाएगा, कौन सा जाएगा बताओ। बट शो रिजल्ट में जाना चाहिए ना। शायद पेरेंट वाला जो है वो मैसेज में जाएगा। राइट। ये क्या, जब ये एक्चुअल कॉलिंग यहाँ पे हो रहा है, उससे पहले ये कोई एग्जीक्यूट नहीं होता, कॉल नहीं होता ये, राइट। मैंने बोला था कि ये पैरामीटर पास करने के लिए बाइंड यूज करते हैं, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा वो, राइट। ये खाली उसका फंक्शन की डेफिनेशन पास होके अंदर आता है, जैसे मैं कंसोल करके दिखाया। तो फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा, तो ये जैसे कॉल होगा तो ये जो पास हो रहा है तो ये पहले कैच कर लेगा, ये फर्स्ट टाइम, फर्स्ट वाला, राइट। फिर यहाँ पे जितना भी पास करोगे सेकेंड थर्ड एंड ऑनवर्ड्स विल बी कैच्ड। जो बाइंड में जो भी पास करोगे ना, सपोज यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट पास करता हूँ, देखो यहाँ पे और एक लिख दिया 2 2 2, राइट। और यहाँ पे सपोज और एक पैरामीटर रख दिया मैंने कि डी, ठीक है, आर्गुमेंट। और यहाँ पे मैं डी आर्गुमेंट डी भी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे डैश देन डॉलर डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिंग पास किया, देखो यहाँ पे अभी क्या है कि दो पैरामीटर पास किया, यहाँ पे तीन पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो फर्स्ट टू पैरामीटर विल बी रेस्पेक्टिवली स्टोर हियर, एंड यहाँ पे जो बाइंड के अंदर जो पास किया वो डी में स्टोर होगा, क्योंकि मैंने बताया जब ये फंक्शन इमीडिएटली कॉल होगा तो ये दोनों पहले पैरामीटर एज ए फर्स्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, और बाइंड में जो पास करे वो उसके बाद की जो भी आर्गुमेंट होगा उसमें स्टोर होगा। आप देखो क्या दिख रहा है इसमें, तो रिजल्ट आफ्टर एडिंग, सो एडिंग कहाँ पे पास किया, देखो यहाँ पे आ गया, नहीं ये अलग काम किया। तो एडिंग कहाँ पे काम किया, एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट, उल्टा बोला मैंने, सॉरी। देन सेकेंड विल बी सम, थर्ड विल बी 2 2 2, सेकेंड विल बी द 19 इज द सम, एंड द लास्ट पैरामीटर विल बी दिस, ओके। मैंने उल्टा बोल दिया आपको, जैसे ये जब पास करोगे, ये यहाँ पे जो भी पास करोगे इट विल बी कैच बाय द फर्स्ट पैरामीटर, sorry, okay. Then whatever other parameter you pass over here will be stored in the rest of the parameters,
तो बाइंड सर एक क्वेश्चन था। मतलब जो पहले हम रन टाइम बाइंड करते हैं वो पहले जाएगा, इसका मतलब ये हुआ? हाँ, जब यहाँ पे बाइंड करते हैं तो वो पहले एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी जब कॉलिंग के टाइम आपने एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द पैरामीटर जो भी होगा ये इसमें स्टोर हो जाएगा। अब सपोज ये डी नहीं है तो ये 2 विल लॉस्ट, ये कोई कैच नहीं करेगा, देखा। तो डी कहीं पे मिलेगा ही नहीं, सॉरी इसको निकालना नहीं चाहिए, ये अनडिफाइंड दे दिया क्योंकि डी करके कुछ है नहीं, राइट। तो जो बाइंडिंग में पास करेंगे इट विल बी कैच बाय द फर्स्ट पैरामीटर एंड रेस्ट ऑफ द इफ यू पास हियर then it will be catched by rest of the parameters. So is it clear? Yes, clear. तो बाइंड मेथड का ये एक यूसेज है, मींस ऑलवेज ये ध्यान रखना, बाइंड मेथड ऑलवेज यूज्ड जब तुम ये कोई भी फंक्शन को तुम इनडायरेक्टली कॉल करना चाहते हो। आगे डिटेल्स में पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मतलब इमीडिएटली कॉल नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे कॉल जैसा ही है, पैरेंथेसिस पास कर रहे हो और पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो और पैरामीटर भी, एक्चुअल पैरामीटर भी पास कर रहे हो इसमें, या आर्गुमेंट पास कर रहे हो, बट स्टिल इट इज नॉट कॉलिंग इमीडिएटली। सो बाइंड इज यूज्ड टू नॉट टू कॉल द फंक्शन इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब आप स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, देन वो वेरिएबल को कॉल करने के लिए आप यूज करोगे, तब ये जरूरी है। वो आगे और भी डिटेल में समझाऊंगा, इतना खाली ध्यान रखना। यहाँ पे भी वही किया आपने, डायरेक्ट कॉल करने के लिए मैंने रोका यहाँ पे, क्योंकि ये बाइंड निकाल दूंगा तो ये क्या करेगा, इधर ही कॉल हो जाएगा और फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। तो आर्गुमेंट पास करने के लिए हम ये बाइंड मेथड कैसे यूज किए, ये क्लियर है अभी? यस सर। सर Okay. ये बाइंड को ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने का यूज आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, जैसे ऐसा सम कुछ अप के नहीं। अंदर एक्चुअली इसका मीनिंग यही है कि जब कभी भी हमको मेथड को इनडायरेक्टली कॉल करना है तभी ये बाइंड यूज होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे यही है कि यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, इनडायरेक्टली कॉल करना है। इनडायरेक्टली का मतलब ही यही है कि एक वेरिएबल में स्टोर होगा, फिर मैं उसको कॉल करूंगा, राइट। तो ये, हाँ, ये एक यूज केस है जब हम फंक्शन के अंदर एज ए कॉल बैक पास कर रहे कोई अनदर फंक्शन को, बट वी वांट टू पास एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर एक्चुअली पास कैसे होता है, जब हम कॉलिंग करते हैं, फंक्शन कॉलिंग। बट यहाँ पे फंक्शन कॉल भी नहीं हो रहा है और आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली हम इसको स्टोर करते कहीं पे अलोंग विथ इट्स आर्गुमेंट, बट कॉल करते बाद में, यहाँ पे बाद में मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो इनडायरेक्टली कॉल करने के लिए हम बाइंड यूज कर रहे हैं, वो आगे भी वही देखेंगे। इनडायरेक्टली लेटर ऑन, ये इनडायरेक्टली होता है, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर किया बट बाद में कॉल किया। ये जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टोर किया पहले, ये वेरिएबल, ये पैरामीटर में जा रहा है, मतलब क्या है, ये वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, जैसे मैंने अभी दिखाया यहाँ पर लिख के, राइट। देन मैं इसको कॉल करता हूँ, कभी भी कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉल करूँ या बाद में कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, बीच में कॉल करूँ, कहीं पे भी कॉल करूँ, मेरी मर्जी, कॉल कर सकता हूँ उसको, राइट। तो बाइंड का और डिटेल में, और कॉल एंड अप्लाई, ये तीन चीज, बाइंड, कॉल एंड अप्लाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। तो इट इज एन यूज केस और बाइंड का बहुत सारे डेफिनेशन तुमको अलग अलग जगह में मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा, बट आप समझ जाओ कि किस तरीके से यूज होता है, राइट। तो इसका डिटेल्स मैं कल बता दूंगा, सॉरी, और भी डिटेल बताऊंगा, इसका डिटेल बता दूंगा नहीं, इसका और भी डिटेल्स में बताऊंगा, जो बाइंड, कॉल एंड अप्लाई। बट उससे पहले तुमको ये जो एक डाउट क्या आया होगा, ये दिस क्या है, अभी डाउट आया ना, दिस। तो ये दिस समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने और ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा, दिस रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। तो जो फंक्शन की डिटेल पढ़ रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट की डिटेल पढ़ दे खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में फिर से अगेन बाइंड एंड कॉल एंड अप्लाई तीन बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी फंक्शंस में ये कॉल, सॉरी, कॉल बैक है, और दो चीज बाकी है,
बाइंड और एक डिटेल में बताऊंगा, कॉल एंड अप्लाई फंक्शन में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, और क्लोजर। क्लोजर मैं बता देता हूं बट कल और एक बार बता दूंगा। क्लोजर क्या है, कॉलबैक एंड क्लोजर के अंदर डिफरेंस यही है कि कॉलबैक is a function which is passed as an argument to an argument to another function, sorry parameter to another function, और argument भी बोल सकते हैं, right? Because मैं यहाँ पे as an argument of sum of function यहाँ पे पास कर रहा हूँ, right? But closure क्या है, whenever you define a function inside the body of an another function, जैसे ये एक function है, right? बट इसके अंदर और एक फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा ना मैं, मतलब ये फंक्शन बॉडी के अंदर है, ये पैरामीटर में नहीं है, फंक्शन बॉडी के अंदर दूसरा एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं ABC, राइट? तो इसको क्या बोलते, क्लोजर, मींस इट इज एनक्लोज्ड। क्या है फंक्शन ए, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, तो यहाँ पे तो ये एक दूसरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया, कहाँ पे, ये फंक्शन की बॉडी के अंदर, नॉट इनसाइड इन पैरामीटर्स। तो जब पैरामीटर में पास करते एक फंक्शन को, देन उसको क्या बोलते, एज एन कॉल बैक। बट जब मैं डिफाइन करता हूँ एक फंक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अनदर फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड क्लोजर। एंड क्लोजर ऑलवेज सपोर्ट लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप मैंने बताया था, आपको याद होगा, राइट? यस सर। कंपाइल टाइम में वो वैल्यू असाइन कर लेता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। स्टैटिक स्कोप बोलते हैं उसको, लेक्सिकल स्कोप को स्टैटिक स्कोप भी बोलते हैं, राइट? तो वो क्लोजर क्या करता है, वहां पे भी जो एग्जांपल दिया था क्लोजर ही था, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मैंने रखा था, याद है? तो उसको क्लोजर बोलते हैं। तो देखेंगे आपने कि क्लोजर क्या है। क्लोजर बहुत लंबा चैप्टर है, उसको डिटेल में बताऊंगा, और ये कॉलबैक ये सब बताऊंगा मैं। कॉलबैक बोल रहा हूँ, कॉल एंड अप्लाई एंड बाइंड और एक बार डिटेल में बताऊंगा। बट अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव हो रहे हैं। क्लियर? तो फंक्शन में पूरा क्लियर हो गया आपका? फंक्शन में कोई और डाउट है? अभी असाइनमेंट आज मिल जाएगा आप लोगों को। जो फंडामेंटल था ना, फंडामेंटल के अंदर आ गया ऑपरेटर, कंडीशनल्स, ऑपरेटर्स के अंदर जितने सारे ऑपरेटर्स था, देन बेसिक ऑफ फंक्शंस, लूप, conditions, conditional statement like if, switch, if else, switch, right? फिर loops, do while, for and for in and for up, right? इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आज, जो वीकेंड में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सॉरी असाइनमेंट करोगे। और नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे मैं डेट भी दे दूंगा, तब कब तक आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। क्लियर? यस सर। ओके ओके सर। ओके, सो अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाए, क्योंकि 10 मिनट्स मोर इज देयर। कहाँ से मिलेगा ये? वेट, टाइप। तो समझ में आया ये क्लोजर, कॉलबैक्स, ट्रेनिंग एंड वेबिनार, टेक्निकल ट्रेनिंग, DevOps, नो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। ओके, नाउ फंक्शन के बाद एरे का बेसिक में बता देता हूँ, या वी कैन कंटिन्यू टुमारो, इट्स फाइन। ओके, इसमें भी बहुत सारे एरे मैनिपुलेशन फंक्शन, एरे का कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा मैं।